Absolutely, because the state exchequer is one that is facing financial crisis, and as laughable as this incident is, it's also about the priorities of the government. It's a state machinery that has been employed into just finding where the samosas have gone. Pranesh, the BJP has asked these tough questions of the Sukhu Sarkar, saying the focus does not clearly seem to be on governance. It seems to be on the samosas for the Chief Minister. हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के पास अपने चीफ सेक्रेटरी को पैसे देने के लिए नहीं है। क्राइम रेट 8% बढ़ चुका है, परंतु मुख्यमंत्री और पूरी की पूरी सरकार इस बात में व्यस्त है कि समोसा किसने खाया है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी की प्रायोरिटीज क्या है। इनकी हद देखिए, अगर मुख्यमंत्री को दिया गया समोसा अगर उनके स्टाफ खा लेते हैं तो उसको एक एंटी गवर्नमेंट माइंडसेट भी कहते हैं। इससे ये समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी की गरीबों की प्रति सोच क्या है। और आज हिमाचल प्रदेश का बंटाधार इसीलिए करा जा रहा है कि सरकार ये ध्यान नहीं रख रही कि जनता की सेवा कौन कर रहा है। So you heard it from the BJP. The BJP is asking about the Congress's misplaced priorities. My colleague Adeep is also joining us on the broadcast. Adeep, this is a very, very bizarre case. A government which was already being criticized for the toilet tax now comes up with a CID probe to find out where the samosas have gone missing. Well, definitely, Pratibha, see, it's a bizarre incident that has taken place in Himachal Pradesh where samosas is not being given to Chief Minister, and the entire probe has been ordered in this case. In fact, CID is probing the matter. They are calling it the anti-government. In here, Lucknow, we have some people who are enjoying their samosas. You can see this is they all are enjoying their morning tea with samosas. आप लोग बताएं कि हिमाचल प्रदेश में एक मामला हुआ है, मुख्यमंत्री के पास समोसे नहीं पहुंचे, जांच बैठा दी गई, सीआईडी कहती है कि ये सरकार विरोधी काम था। ये सब भैया राजनीति का एक पार्ट है, और क्या कहा जाए, अब वहाँ के नेता मंत्री ऐसे हैं जो समोसे पर राजनीति कर रहे हैं। ये कोई बात, देश का देखो, आगे का देखो, ये समोसा क्या होता है। समोसे पर राजनीति आप लोग कर रहे हो, ये क्या अच्छी चीजें हैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए? क्या ये नेताओं का काम है कि अब हम समोसे पर राजनीति करें? आपका क्या मानना है कि समोसा एक ऐसी चीज है जो बड़ी जल्दी बन जाते हैं, 5 से 10 मिनट में मिल जाते हैं, समोसे ना पहुंचना, उस पर जांच बैठा देना, सीआईडी कहती है कि ये तो जो है सरकार विरोधी काम हुआ है, ये किस तरह का काम हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया है? सरकार जो भी अपना काम कर रही है विरोध के लिए कर रही है, मगर समोसे पे जांच बैठना बहुत ही नॉर्मली चीज नहीं लग रही। कैसे लग रहा है कि इशू बनाया जा रहा है। जैसे मैं हाईलाइट नहीं हो रहा हूँ तो मुझे क्या छोटी चीज से हाईलाइट करना एक नॉर्मली चीज हो गई है ये। आप क्या मानते हैं कि क्या ये सही था कि अगर जो मुख्यमंत्री तक समोसे नहीं पहुंचे हैं तो उसके लिए पूरी जांच बैठा दो, सीआईडी जांच करे, पुलिस से पूछताछ हो और बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार हो? बस यही काम रह गया है क्या? सीआईडी को यही काम रह गया कि समोसे की जांच कराई जाए? ये तो बहुत बेकार चीज है, इसमें तो कोई राय नहीं बनती इसकी, कोई पकड़ा जाए। So, Pratibha, you heard people are they all are they are not ready to believe what really has happened in Himachal. They are saying that whether CID has no other work rather than they are investigating on just a piece of samosa which has to be given to Chief Minister of Himachal. So this is the kind of a state that Himachal has made with the inquiry that was given to CDI for these samosas. And it has turned into an absolute joke. People are asking the pertinent question, does the CID have no other cases to look at? Stay with us. We've in fact also spoken to the former Himachal Pradesh Chief Minister Jairam Thakur, who has hit out at the Congress party, asking the Sukhu Sarkar, what is it really up to? Jairam Thakur joins us on the broadcast. Jairam Thakur ji, ये क्या चल रहा है in Himachal Pradesh for samosas? Are the CID now going to be employed to hunt for these samosas and where they went and file a report? ये तमाशा ही है हिमाचल प्रदेश का, पूरे देश भर में इस तरह से जनाजा निकाल दिया। कभी टॉयलेट टैक्स पे जाते हैं और कभी समोसा की इंक्वायरी हो रही है, तो बड़ी हैरानी की बात है। मैं समझता हूँ कि जो हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस का जो है, इस तरह का उदाहरण देखने को नहीं मिल सकता है, जो मजाक बन गया है पूरे देश भर में और चर्चा का विषय बन गया है। और समोसे की इंक्वायरी के लिए आईजी जो है वो आदेश कर रहा है, आईजी लेवल का अधिकारी आदेश कर रहा है नीचे,
और सीआईडी को इंक्वायरी सौंपी गई है, और उसके बाद समोसे कितने आए, किसने समोसे खाए, किसने लाए, ये सारी चीज को लेकर के बेवजह के जहां की रैंपट करप्शन हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे महकमे में चल रही है और उसके बारे में ध्यान नहीं है हिमाचल प्रदेश में। ये इस तरह की जो हालात जो बने हैं तो सचमुच में पूरा देश इस बात को पूछ रहा है कि हो क्या रहा है ये हिमाचल प्रदेश में, क्या तमाशा बना हुआ है जी, क्योंकि उनका ध्यान इस पे है कि सीएम साहब के समोसे किसने खाए हैं। तो क्या सीआईडी एंड इट्स सो डिफिकल्ट टू इवन बिलीव इफ दिस इज ट्रू और दिस इज जस्ट फेक न्यूज। इसमें कहा जा रहा है कि सीआईडी ने एक प्रोब भी किया था इस पे और उनको कहा है कि ये एंटी गवर्नमेंट एक्ट है कि सीएम के लिए जो समोसे लाए गए थे वो सीआईडी पर्सनल ने खा लिए हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बड़े हैरानी की बात है जो हम थोड़ा देख रहे हैं इस बात को। आईजी ने इंक्वायरी मार्क की है, नीचे के लेवल पर जाकर के फिर इंक्वायरी चल रही है, कितने समोसे आए थे, कौन लाने के लिए गया था और किसने वो समोसे लाए और किसको दिए, किसने खाए, ये इस पर चल रही है सरकार की इंक्वायरी। इस पर सरकार जो है उतना ज्यादा सीरियसली कि समोसे तो सीएम के लिए आए थे लेकिन समोसे किसने खाए। My colleague Shivam is also joining us on the broadcast to get a sense of what the people believe of what is happening in Himachal Pradesh. Shivam, as you ask the questions to the people as well, I'm sure there are many who are wondering if this is even true. Can this actually happen in a state government, isn't it? Yeah, the first question that we were asked quite often when we talked to the people was, is it the correct news? They went on website because it was so unbelievable for them. However, we have certain people who come in near the poha stall to have a poha. Sir, हिमाचल से एक खबर आई है कि सीएम को चीफ मिनिस्टर जो वहाँ हिमाचल प्रदेश के हैं उनको समोसे नहीं मिल पाए, तो उस पर सीआईडी की जांच बैठ गई है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो ये बोलना चाहूँगा जैसे कि राहुल गांधी ने बोला था कि एक तरफ से हम आलू डालेंगे और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, तो उस हिसाब से हिमाचल प्रदेश सरकार को और भारत सरकार को उस पर भी जांच कराना चाहिए कि आखिरकार राहुल गांधी वो टेक्नोलॉजी कहाँ से लाएंगे। और एक चीज़ और कि हिमाचल इसमें जो हुआ है, हिमाचल में जो हुआ है कि जिस तरह से समोसे पर जांच बैठ गई है, उस पर आपका क्या मानना है? अभी हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर बहुत हजारों करोड़ का लोन है, तो उस लोन को अभी वो नहीं निपटा रहे हैं, ना ही पूरा कर रहे हैं। लेकिन उस चीज़ को छोड़ के, उस मुद्दे को छोड़ के वही समोसे वाले मुद्दे को उठा के चल रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर मैं समोसे को समोसा वाला जो चीज़ें हुआ है, घटना हुआ है, अगर हम उसको अच्छे से इंक्वायरी करेंगे, और वो तो ये भी बता रहे हैं कि ये गवर्नमेंट के खिलाफ एक्ट किया गया है। तो द पीपल बेसिकली आर सेइंग दैट व्हाइल देयर आर अ लॉट ऑफ डेब्ट्स ऑलरेडी ऑन द गवर्नमेंट, व्हाई आर दे इंडल्जिंग इन ऑल दीस? सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि समोसे के ऊपर जांच बैठ गई है जहां पर ऑलरेडी इतना कर्जा है एक स्टेट के ऊपर? देखिए, ये तो अपने आप में बहुत ही गलत बात है। समोसे के ऊपर जांच बैठ गई है। इतने देश में इशू है, इस गरीब देश में एजुकेशन का मुद्दा है, रेप होते हैं डेली, उस पर जांच क्यों नहीं होती? ठीक है, महिलाओं के लिए कदम क्यों नहीं उठाए जाते? एक छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा बतंगड़ बना देता, ये बताता है सुखबिंदर सिंह जो है, जो मुख्यमंत्री है हिमाचल के, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये चीज ये बताती है। इतनी छोटी सी बात के लिए बतंगड़ बता देना बहुत ही निंदनीय है अपने आप। So the people also believe that this is a very hilarious news, at the time embarrassing also for a state which is already facing a lot of debts. According to the CAG report, 13,000 crores if a state is going to such debts. The pensions were pending, the various salaries were pending, and if they are indulging in such activities, if they are, indulging a prominent CID like organization in such activities, it is hilarious according to the people who are here. Absolutely, a case of misplaced priorities, and the BJP has asked this very question to the Congress Sarkar in Himachal Pradesh. Where are your priorities? Are your priorities to just hunt for these samosas? Listen in. कांग्रेस का हिमाचल में गवर्नेंस मॉडल तो देखिए, पहले टॉयलेट पर टैक्स लगाना और उसके बाद अब समोसे पर सीआईडी की इंक्वायरी, वो भी सरकार विरोधी कृत्य बताकर। जी हां, समोसे और केक मंगवाए गए थे, सीएम के लिए थे, गलती से उनके स्टाफ को परोस दिए गए। तो हिमाचल प्रदेश के पूरे प्रशासन का काम ये बचा है कि अब इसमें सीआईडी इंक्वायरी कराकर, इसे एंटी गवर्नमेंट एक्ट बताकर इसमें जांच की जा रही है। प्राथमिकता देखिए, हिमाचल के पूरे व्यवस्था को चौपट कर दिया। टॉयलेट पर टैक्स लगाने की नौबत आ गई। डीजल पेट्रोल
पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, बिजली के दाम बढ़ा दिए, पानी के दाम बढ़ा दिए, 1500 रुपये प्रति महिला को देने वाले थे, वादा किया था। तो वो सब वादे निभाने के बदले अब समोसा कैसे स्टाफ तक पहुंच गया, उसमें एंटी गवर्नमेंट इंक्वायरी, एंटी गवर्नमेंट ये कृत्य है, ये कहकर इंक्वायरी होगी। एक All right, we continue getting you these reactions from the people, speaking to the people on what they think of the Himachal Pradesh government's strict action against those who happen to have eaten some samosas meant for the chief minister. We're keeping a track of the developments on